church. नमस्ते चर्च। Okay, just a short thought of verse before we go. और एक छोटा वचन बोलना चाहता हूँ इसमें। Okay, I just want to dwell on one verse because I want this verse to be in your heart. और एक ही वचन के ऊपर ज्यादा मनन करना चाहता हूँ, यही वचन आपके हृदय में रहे। Okay, 2 Corinthians 4 verse 7. और दूसरा कुरिन्थियों का 4:7। For we have this treasure in the earthen vessel. और हमारे पास ये खजाना है इस दुनिया के इस बर्तन में, That the excellence of the power ताकि ये जो असीम जो महिमा है, of सामर्थ्य God कि जो परमेश्वर से and not of us. और हमारे ओर से नहीं। Okay, and that's amazing. और ये अद्भुत है Like we don't want we be exalted, कि हम नहीं चाहते कि हम जो है ऊंचा उठाए, but we wanted to reveal Christ to others. लेकिन हम चाहते कि परमेश्वर हमारे तौर से जो है दिखे दूसरे लोग को। So today as we enter into worship, और जैसे कि आज हम स्तुति आराधना में there's जाएंगे, a treasure inside of हम us. सबके अंदर खजाना है। And let's worship Him. आइए हम परमेश्वर की स्तुति Father, we आराधना just करें। thank you. पर पिता परमेश्वर धन्यवाद And देते bless हैं, this beautiful day. और ये खूबसूरत जो दिन के लिए धन्यवाद देते हैं, आशीष दीजिए। In Jesus' name we यीशु pray. मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, Amen. आमीन Amen. आमीन। Your eye is on the sparrow, and your hand, it comforts me. From the ends of the earth to the depths of my heart, let your mercy and strength be seen. You've called me to your purpose, and I say angels understand. For your glory, may you draw all men as your love and grace demand. And I will run
What can wash away my sin? Nothing but the blood of Jesus. What can make me whole again? Nothing but the blood of Jesus. Oh, precious is the flow that makes me white as snow. The fount I know, nothing but the blood of Jesus. For my pardon, this I see, nothing but the blood of Jesus. For my cleansing, this my plea, nothing but the blood of Jesus. Oh, precious is the flow that makes me white as snow. No other fount I know, nothing but the blood of Jesus. Nothing can for sin atone, nothing but the blood of Jesus. Not the good that I have done, nothing but the blood of Jesus. Oh, precious is the flow that makes me white as snow. What other fount I know, nothing but the blood of Jesus. God so loved the world that He gave His only Son. Whosoever believes will not perish, they shall have eternal life. I shall hold to the cross. I shall hold to God alone, for His love has ransomed me, for His love has set me free. For God so loved the world that He gave His only Son. Whosoever believes will not perish, they shall have eternal life. I shall wait upon the Lord. I shall wait upon His word. By His grace I am released. By His grace I am redeemed. For God so loved the world that He gave His only Son. Whosoever believes will not perish, they shall have eternal life. Yes, Lord. We thank you tonight. Thank you for the cross today. The greatest love is being manifested at the cross. And the precious blood that cleansed us from all our sins. And Lord, you became our sin bearer for us. Lord, took away all our sin upon you, Father. You became a curse for us so that you could set us free. We
thank you, Jesus, today. Thank you for the greatest love is being revealed to us at the cross. We worship you, Lord. Help us to look to the cross, the greatest love. Thank you, Father. It means so much to us this evening that you left heavens for us, and that sacrifice is very personal for our lives, Lord. We worship you today. That you loved the world so much that you gave your only begotten Son to everybody who believes. And whoever believes will never perish, will have eternal life. Thank you for this greatest promise. We worship you, Lord, today. We exalt you, Lord Jesus. Thank you, Lord. For God so loved the world that He gave His only Son. Whosoever believes will not perish, they shall have eternal life. Yes, they shall have eternal life. We have a special evening. और आज बहुत ही खास शाम है Okay, we have three messages today for all of us, a treat. और आज 3 संदेश है हम सब के लिए बहुत ही अच्छा Okay, first we'll hear from Pastor Manish. पहला हम पास्टर मनीष से सुनेंगे Okay, Pastor Manish is a 4-year graduate पास्टर मनीष जो है 4 साल का ग्रेजुएशन कर and he चुके हैं works under Pastor Ganesh in Nalasupara. और वो पास्टर गणेश के नीचे जो है सेवकाई करते हैं He's an amazing man of और God. बहुत ही अद्भुत I व्यक्ति had a है privilege of meeting him recently. और मेरा ये सौभाग्य था कि मैं उनको मिला हूँ हाल ही And में it's amazing to see how God is using these men. और ये अद्भुत है किस तरह परमेश्वर इस्तेमाल Okay, कर रहे they हैं work among the slums in Nalasupara. वो जो है नाला सुपरा के झुग्गी झोपड़ी में काम करते हैं Okay, सेवकाई। unknown but well known. और कोई नहीं पहचानते लेकिन परमेश्वर अच्छी तरह से So पहचानते we'll have an opportunity to hear from him today हैं। first. हमारे पास ये मौका है कि आज उनसे हम पहले सुनेंगे Okay, and then we also have Pastor Manoj with us. उसके बाद पास्टर मनोज है हमारे Okay, we साथ always enjoy him preaching और here. हम हमेशा खुशियां मनाते हैं जब वो प्रचार करते हैं Okay, so we hear a beautiful message from him तो too, हम उनसे भी बहुत ही अच्छा खूबसूरत from all संदेश the way सुनेंगे। from Gujarat. गुजरात से वो प्रचार करेंगे Okay, so then I'll share a short उसके devotion. बाद पास्टर किशोर छोटा संदेश बताएंगे Okay, so let's welcome Manish as he comes for the introduction. आइए मनीष का हम स्वागत करते हैं परिचय का संदेश Yes. हाय प्रेज़ द लॉर्ड आप सभी को परमेश्वर का धन्यवाद हो इस समय के लिए इस मौके के लिए और थैंक यू सो मच पास्टर का जो उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दिया कि जो वचन प्रचार करने के लिए सो लेट्स प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर की वचनों को सुनने के लिए हृदय अपने मनों को तैयार करते हैं। स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु के नाम से आपके चरणों के पास आते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं, आपके नाम की महिमा करते हैं। परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ मैं आपका प्रभु यीशु मसीह और धन्यवाद की बलि चढ़ाता हूँ। आज के वचन को आपके हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से करते हैं, आमीन। आज जो मैं बात करने वाला हूँ वो है कि समर्पण के बारे में। कि हमारा जीवन हम जानते हैं कि मसीही जीवन है और हमारा जीवन एक समर्पण होना चाहिए। जिस रोमियो का किताब उसका 12 अध्याय उसकी पहली पंक्ति में आप लोग के लिए पढ़ना चाहता हूँ। इसलिए हे भाइयों, तुम परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीर को जीवित और पवित्र परमेश्वर को भावता और बलिदान करके चढ़ा दो, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। तो अगर हम डेली परमेश्वर में बढ़ना चाहते हैं, हमारा जीवन एक परमेश्वर के योग्य होना है, अगर हम चाहते हैं तो हमारा जो जीवन है एक प्रकार से डेडिकेशन होना बहुत ज़रूरी है, मतलब समर्पण होना बहुत ज़रूरी है। यदि मैं अपने जीवन में समर्पण नहीं हूँ, अगर मैं डेडिकेट नहीं हूँ तो कहीं ना कहीं हमारी लाइफ में पता है प्रॉब्लम्स आएगा। तो मैं 7 ऐसे व्यक्ति हैं और 7 ऐसे पॉइंट हैं जो मैं आप लोगों के सामने बताने वाला हूँ कि उनके जीवन को लेकर कि वो 7 चीज़ों को किस प्रकार से वो जो है किस चीज़ों के लिए समर्पण थे। तो पहले हमें पता है सेवकाई के बारे में सोच रहा था, डेडिकेट फॉर द लाइक लॉर्ड फॉर हिज सर्विंग, परमेश्वर की सेवा के लिए क्या होना, समर्पण होना। तो मैं बाइबल में पता यहोशू का किताब उसका 24 अध्याय को हम देखते हैं। यहोशू का जो जीवन था पता है
वो परमेश्वर की सेवा के प्रति पता है वो समर्पण था। वो रेडी परमेश्वर के प्रति उस अपने जीवन में उसने लोगों को बोला है। उस 24 में लिखा हुआ है, 24 अध्याय में उसने अपने लोगों को सबको बुला के बोला कि तुम चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे, लेकिन हम और हमारे घराना परमेश्वर यहोवा की क्या करेंगे, सेवा करते रहेंगे। तो हमारा जो जीवन, अगर मैं सेवकाई करना चाहता हूँ तो यहोशू की तरह होना चाहिए कि चाहे कुछ भी हो जाए, प्रभु मैं तेरी सेवा क्या है करता रहूँगा। दूसरा बात, जीवन के प्रति समर्पण। यदि मेरा जीवन अगर रियली मैं प्रभु के प्रति चाहना चाहता हूँ तो जो हमारा जीवन है ना, रूत के बारे में सोच रहा था, पता है रूत की तरह पता है समर्पण होना चाहिए। रूत अगर किताब आप पढ़ोगे तो रूत की किताब उसका पहला अध्याय में लिखा हुआ, दूसरा अध्याय के बीच में हम देखते हैं वहाँ पे लिखा हुआ रूत क्या बोलती है कि तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा, तेरे लोग जो है मेरे लोग होंगे, तू जहाँ जाएगी मैं वहाँ जाऊँगी, तू जहाँ मरेगी मैं वहाँ मरूंगी। हम जानते हैं, हमें पता है रूत के जीवन के बारे में कि जो है वहाँ पे नाओमी और रूत जो है जानते हैं कि रूत था उसका हस्बैंड मर चुका है। उसकी सास ने उसको बोला तो अपने घर वापस जा सकती थी, उसके पास मौका था, लेकिन उसने क्या किया, उसने सब कुछ इनकार किया, अपना जीवन क्या किया, डेडिकेट कर दिया, अपना जीवन क्या किया, दे दिया, समर्पण कर दिया कि तेरे लोग जो है मेरे लोग होंगे, अपना पूरी तरह से फुल्ली समर्पण कर दिया। तो हमारा जीवन पता है, अगर मैं रियली हम जानते, अगर हम समर्पण होना चाहते तो रूत की तरह पता है हमारे जीवन कोई भी हालात हो, कुछ भी होने दो, कैसा भी होने दो, लेकिन हमें जीवन जो है क्या करना है और उसकी तरह समर्पण होना है। तीसरी चीज़ें मैं बोलता हूँ, बुलाहट के पीछे, बुलाहट के प्रति समर्पण होना, लाइक डेडिकेशन फॉर योर कॉलिंग, हमारे बुलाहट के प्रति समर्पण होना। तो एलिसा के जीवन के बारे में सोच रहा था। एलिसा जो रियली अद्भुत प्रभु का सेवक था, जब उसके जीवन पता है प्रभु ने उसको बुलाहट दिया। अगर हम देखते दूसरा राजा का किताब, उसका तीसरा अध्याय और दूसरा अध्याय, दूसरा अध्याय के बीच में वो घटना है कि जब प्रभु ने उसको बुलाया, उसने क्या किया, अपने पूरा जो बैल था, जो जोड़ी बैल था, उसने क्या किया, सब काट के क्या किया, उसने खिला दिया, और जो भी उसके सामान थे, औजार थे, उसने क्या किया, सब जला दिया और प्रभु के पीछे क्या किया, वो लिया। वो एकदम डेडिकेट था। वो जब प्रभु ने उसको बुलाया तो उसने पीछे मुड़ के नहीं देखा, अपनी चीजों को नहीं देखा, उसने क्या पूरे से उसने खत्म कर दिया कि ताकि मैं चाहूँ तो भी मैं आ ना सकूँ। तो मैं ये सोच रहा था कि लाइक बुलाहट को देखकर समर्पण होना है, तो पता है अरे जो है इसकी तरह जो है एलिसा की तरह समर्पण होना है। चौथा जो है बच्चों के प्रति समर्पण होना है, पता है तो हन्ना के जैसे होना है। हन्ना का जीवन पता है उसने क्या किया, अब उसका जो लड़का जो था शमूएल को क्या किया, प्रभु के प्रति क्या किया, उसने पूरी तरह से समर्पण कर दिया उसकी सेवा होने के लिए। पांचवा जो है अपनी पहचान के प्रति समर्पण होना। कई बार पता है हमारा पहचान, हम कई बार अपनी पहचान को समर्पण नहीं कर पाते प्रभु के पास। मैं इस बैकग्राउंड से आया हूँ, सो एंड सो, आई एम समथिंग लाइक दैट, आई एम समथिंग, मतलब होता है ना मैं कुछ हूँ, लेकिन परमेश्वर बोला तुम्हें क्या करना है, उसको भी समर्पण करना बहुत जरूरी है। तो मैं सोच रहा था पौलुस के जीवन के बारे में। अगर आप देखोगे तो दूसरा कुरिन्थियों की किताब 11 अध्याय में पूरी अपनी कहानी बताता है, अपनी गवाही देता है कि मैं क्या हूँ, मैं शास्त्रों का शास्त्री, फरोसी का फरोसी हूँ, मैं व्यवस्था में सबका गुरु, बहुत सारी चीजें अपने आप को बता रहा था। लेकिन फिर भी पता क्या, उसने क्या किया, अपनी उस चीजों को समर्पण किया प्रभु के सामने। और हम जानते प्रभु ने क्या किया, उसके जीवन को किस प्रकार से उपयोग किया। सवाल ये उठता है क्या मैं समर्पित हूँ? अगर मैं अपने जीवन समर्पण हूँ, प्रभु क्या करता है, हमारे आपके जीवन को भी क्या करता है, उपयोग करता है। छठवीं बात वह है परमेश्वर के वचनों के प्रति समर्पित होना। रियली मैं सोच रहा था इजरा के पिता के बारे में, भजन संहिता 119 जो इजरा के पिता ने लिखा, जैसा हम आप जानते हैं, वो पता है वो परमेश्वर के वचनों पर समर्पण था। वो बोलता है कि मुझे जीवन में चाहे कोई भी समस्या न दो, हे यहोवा तेरे वचनों से मैं शांति पाता हूँ, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्गों के लिए क्या है, उजियाला है। लाइक बहुत चीजें भजन संहिता 119 हम जानते हो वचन के बारे में ही, और पूरी तरह से क्या था, वचनों के प्रति डेडिकेशन था, वो समर्पण था उस तरह से। और चौथा लास्ट में सातवां, प्रार्थना के प्रति समर्पण होना, दानियल की तरह। लाइक सोचो कितनी अद्भुत बात है ना। अगर मैं सेवकाई के समर्पण होना चाहता हूँ तो हमें यहोशू की तरह होना है। यदि मैं जीवन के प्रति समर्पण होना चाहता हूँ तो हमें रूत की तरह होना है। यदि मैं बुलाहट के प्रति समर्पण होना चाहता हूँ तो हमें एलिसा की तरह होना है। अपने बच्चों के प्रति समर्पित होना चाहता हूँ तो हमें हन्ना की तरह होना है। और यदि मैं वचनों के प्रति समर्पण होना चाहता हूँ तो हमें इजरा की तरह होना है। और सातवां जो पॉइंट है, यदि मैं प्रार्थना के प्रति समर्पण होना चाहता हूँ तो हमें दानियल की तरह होना है, जो दिन में 3 बार प्रार्थना करता है। याद रखना कि मैं अगर प्रभु के प्रति समर्पण हो जाता हूँ, याद रखना समर्पण मैं इसलिए नहीं होता कि मेरी महिमा हो, समर्पण मैं इसलिए होना चाहता हूँ कि परमेश्वर की महिमा हो। क्यों? क्योंकि जब मैं अपने जीवित अपने शरीर को परमेश्वर का भाव का बलिदान करके चढ़ा देता हूँ, पता हो इस हमारे जीवन के द्वारा परमेश्वर की महिमा होती है। और आपको पता है यही हमारी आत्मिक सेवा है। और परमेश्वर चाहता है कि हम पूरी तरह से, पता है, अपने आप को
परमेश्वर के प्रति क्या करें, समर्पण करें। हम समर्पण करें सेवकाई के प्रति, जीवन के प्रति, बुलाहट के प्रति, अपने बच्चों के प्रति, वचन के प्रति और प्रार्थना के प्रति। और हम जैसे मैंने बताया कि यहोशू, रूत, एलिसा, अन्ना और ये जो है पौलुस, एजरा, दानियल, सब क्या थे, अपने जीवन पर समर्पित थे। और आज हम इनके जीवन को जानते हैं, परमेश्वर की महिमा के लिए जिनका उपयोग किया गया। हमारे भी जीवन को क्या करना है, हमें समर्पण करना है। जिस चीज़ में हमें ज़रूरत है, हमें देखना हम किस चीज़ के प्रति हम नहीं समर्पण हो पा रहे, और हमें क्या करना है, उस चीज़ को प्रभु के पास लेके आना है और हमें समर्पण होना है। जब हम समर्पण हो जाते हैं, प्रभु हमारे जीवन को बहुत ऐसे इस्तेमाल करता है। आमीन। The world is searching for an answer, a ray of hope in a hopeless world. There is a rescue, there we can turn to. There is someone in the answer, in the light he will light our way. His name is Jesus. He came to save us. He is the light, 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 light of the world, and He shines, shines, shines all over the earth, shining bright, bright, bright. He is the light of the world. He is the light, 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 light of the world, and He shines, shines, shines all over the earth, shining bright, bright, bright. He is the light of the world. The world is searching for an answer, a ray of hope in a hopeless world. Who can we turn to? Where is our rescue? There is someone in the answer. He's the light, He will light the way. His name is Jesus. He came to save us. He is the light, 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 light of the world, and He shines, shines, shines all over the earth, shining bright, bright, bright. He is the light of the world. He is the light, 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 light of the world, and He shines, shines, shines all over the earth, shining bright, bright, bright. He is the light of the world. Oh, 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 oh. He is the light, 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 light of the world, and He shines, shines, shines all over the earth, shining bright, bright, bright. He is the light of the world. He is the light, 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 light of the world, and He shines, shines, shines all over the earth, shining bright, bright, bright. He is the light of the world. लॉर्ड, सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ पास्टर किशोर का कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं आपके बीच में संदेश को बांट सकूँ। तो धन्यवाद पास्टर किशोर। आज हम जिस विषय पे बात करेंगे परमेश्वर के वचन से वो ये है कि मसीह में हमारी पहचान। इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं और बहुत सारे लोग और बहुत सारे स्थान उनका पहचाने जाते हैं। और इस दुनिया में दो प्रकार के लोग हैं जो पहचाने जाते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि एक व्यक्ति जो अपने आप को बहुत ही ज़्यादा सामर्थी बोलता है ना, कि मैं बहुत सामर्थी हूँ। और लाइक नबूकदनेस्सर राजा, जैसे कि हम पढ़ते हैं दानियल के 4 अध्याय में पहली पंक्ति में कि नबूकदनेस्सर राजा जो था वो बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली था और इसलिए वो पहचाना जाता था। उसकी पहचान थी, वो उसने बहुत सारे देशों को जीता था और ये उसकी पहचान थी। बहुत बड़ा राज्य था उसका। लेकिन बोलते हैं एक दूसरे प्रकार का व्यक्ति है जो अपनी पहचान को बताता है। वो कहता है कि वो बहुत कमज़ोर है, वो हारा हुआ है, वो थका हुआ है और उसके जीवन में बहुत सारी तकलीफ़ें हैं।
और जैसे कि हम गिदोन के विषय में देख सकते हैं, है ना, न्यायियों की किताब 6 अध्याय में, कि गिदोन एक डरा हुआ व्यक्ति है, कमज़ोर है, छुपा हुआ है, और वो उसकी पहचान है। और वो जब छुपा होता है तो बोलता है कि वो दाखरस के कुंड में बोलता है कि वो जौ झाड़ता है, और तब परमेश्वर उसको उसके पास आता है और उसको दर्शन देता है। और हम जानते हैं कि परमेश्वर उसको बताता है कि तू जिस पहचान में जी रहा है वो पहचान तेरी नहीं है। कई बार एक विश्वासी उस पहचान में जी सकता है जो पहचान उसकी नहीं है। तो हम यहाँ पर वचन पढ़ेंगे, रोमियो का 12वां अध्याय और उसकी 2री पंक्ति। और यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, इसलिए संसार के सदृश ना बनो, ध्यान दीजिए, इसलिए संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते जाओ। इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर परमेश्वर बोलता है कि संसार के सादृश्य ना बनो। तो पौलुस यहाँ पर इसलिए लिखता है क्योंकि लोग कई बार अपने आप को संसार के हिसाब से पहचान में बढ़ाते हैं कि मुझे ये करना होगा, मैं ऐसा हूँ, ये संसार के सारे लोग ये करते हैं तो मुझे भी वैसा ही करना होगा, और तब लोग मुझे जानेंगे और मेरी पहचान पता चलेगी। लेकिन बाइबल बोलती है कि संसार के सदृश ना बनो। हमारी वो पहचान नहीं है, हम संसार की तरह नहीं बन सकते क्योंकि वो हमारी पहचान नहीं है। तो एक व्यक्ति को, एक विश्वासी को अपनी पहचान में बढ़ना बहुत ज़रूरी है, और परमेश्वर हमारी पहचान है। तो अद्भुत है। मैं एक चीज़ जो यहाँ पर सोच रहा था, कई बार लोग अपने आप को बेचारा बोल सकते हैं या संसार की पहचान में बढ़ सकते हैं, लेकिन परमेश्वर बोलता है कि वो हमारी गलत पहचान है और संसार हमारी पहचान नहीं है। इस संसार का जो तरीका है वो मेरी पहचान नहीं है, मेरी कमज़ोरी मेरी पहचान नहीं है, मेरी बीमारी मेरी पहचान नहीं है। और बोलता है कि मेरी सामर्थ मेरी पहचान नहीं है। एक विश्वासी की पहचान है क्या? एक विश्वासी की पहचान स्वयं परमेश्वर है, प्रभु यीशु मसीह है। और बोलता है कि तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते जाओ। तो परमेश्वर चाहता है, हमारे जीवन में उसकी बहुत सारी चाहते हैं और बहुत सारे उद्देश्य हैं जो उनको पूरा करना चाहता है। लेकिन बोलता है कि हम लोग गलत पहचान में जी सकते हैं। एक विश्वासी कब गलत पहचान में जी सकता है, या कब मैं सोच सकता हूँ कि मेरी ये पहचान है? जब मुझे मेरी असली पहचान नहीं मालूम हो। जब एक बच्चा, सोचिए, एक राजा का बेटा अगर कहीं खो जाए, है ना, और वो खो गया है और वो दूसरे राज्य में या दूसरे देश में है, और वहाँ पर वो खो गया है और खोया हुआ है, और वो क्या कहता है, उसको नहीं पता है वो कहाँ से आया है, और वो उसको नहीं पता है वो किसका संतान है, और वो क्या करेगा वहाँ पर? एक नॉर्मल जिंदगी जी सकता है, एक साधारण जीवन जी सकता है। वो संसार की तरह जो लोग करते हैं वो करेगा, है ना, वो जैसे संसार के लोग कार्य करते हैं उस तरीके से कार्य करेगा। लेकिन जैसे ही उसको पता चल जाए कि मेरा जो पिता है वो राजा है, तो वो फिर उस संसार की तरह नहीं जिएगा। उसे फिर मजदूरी करने की, वो परिश्रम करने की ज़रूरत नहीं है ना, कुछ बनने के लिए, क्योंकि वो ऑलरेडी बना हुआ है। वो एक राजकुमार है, उसे कुछ बनने की ज़रूरत नहीं, कुछ बड़ा बनने की ज़रूरत नहीं है, और ना ही उसे ये सोचने की ज़रूरत है कि मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर हूँ। ना ही वो कमज़ोर है अब, और ना ही उसे कुछ बनने की ज़रूरत है, क्योंकि उसे पता चल गया है कि उसकी पहचान क्या है। वो एक राजा का बेटा है, वो एक राजकुमार है, और वो क्या करेगा? सीधा अपने पिता के घर की ओर जाएगा, और वो जब उसके घर में जाएगा तो वो फिर क्या होगा? एक राजकुमार की तरह वहाँ पर रहेगा। तो बोलता है कि तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। मुझे उस संसार में वहाँ जीने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब मुझे पता चल गया है कि मैं यीशु मसीह में कौन हूँ। जब एक विश्वासी प्रभु यीशु मसीह पर, जब एक व्यक्ति यीशु मसीह पर विश्वास करता है, वो विश्वास करता है कि यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा, तो वो अब उस पहचान में जीता है कि हम यीशु मसीह में जयवंत से भी बढ़कर हैं। हम यीशु मसीह में स्वर्गीय स्थानों में बिठाए गए हैं।
मुझे इस संसार में रहने की ज़रूरत नहीं। हम यीशु मसीह के साथ बोलते हैं कि स्वर्गीय आशीषों के वारिस हैं। हमारे जीवन में बहुत सारी आशीषें दी गई हैं। और दूसरी एक चीज़ और कि जब एक विश्वासी को एक व्यक्ति को जब पता चल जाता है कि उसने यीशु मसीह पर विश्वास किया है, उसके मन में डर नहीं होता। उसको ये डर नहीं है कि अभी मैं मरूंगा तो कहाँ जाऊंगा, क्योंकि वो अपने अंत को जानता है। एक विश्वासी को पता है कि जब वो इस धरती को छोड़ेगा उसका शरीर, तो उसकी आत्मा कहाँ रहेगी। हम एक दिन स्वर्ग में रहेंगे, हमें मालूम है। तो हमारी पहचान हमें मालूम है। लेकिन बोलता है कि जब एक विश्वासी अपनी पहचान भूल जाता है और ये भूल जाता है कि वो क्या है यीशु मसीह में, है ना। इफिसियों की पहला अध्याय, कुलुसियों का पहला अध्याय बहुत खूबसूरत है। अगर हम पढ़ें वहाँ पर एक विश्वासी की एक पहचान बताई गई कि हम यीशु मसीह में कौन हैं, इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पर बोलता है कि जब एक विश्वासी को भूल जाएगा कि उसकी पहचान क्या है, तो फिर दूसरी बातें, दूसरी आवाज़ें, दूसरे लोग हमको बताएंगे हमारी पहचान क्या है। उत्पत्ति के 3 अध्याय में हम जानते हैं कि हव्वा को परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया है ना, अपनी समानता और अपने स्वरूप में बनाया आदम को, और आदम से पसली निकाली और उसने हव्वा को बनाया। और जब हव्वा को बनाया तो परमेश्वर ने बोला कि फलो फूलो और पृथ्वी में भर जाओ और इसे अपने वश में कर लो। तो उत्पत्ति का 1:26 और 27 बोलता है कि परमेश्वर ने कहा, आओ हम मनुष्य को अपनी समानता और अपने स्वरूप में बनाए। एक मनुष्य परमेश्वर के स्वरूप में बनाया गया है और ये उसकी पहचान है ना। मेरी पहचान कोई जानवर नहीं, मैं किसी जानवर से नहीं आया हूँ, मैं किसी बंदर से नहीं बनाया गया हूँ, है ना, मैं किसी अमीबा से नहीं बनाया गया हूँ, मैं परमेश्वर के स्वरूप में बनाया गया हूँ। और बोलता है कि ये मेरी पहचान है। मेरी पहचान बोलता है कि संसारिक पहचान नहीं है, मेरी पहचान एक स्वर्गीय पहचान है। और बोलता है कि जब हव्वा ने बोलता है कि अपनी पहचान को पहचाना नहीं, है ना, हमें अपनी पहचान को पहचानना बहुत ज़रूरी है। और जब उसने पहचान को पहचाना नहीं, तो बोलता है कि शैतान उसे बताने आया कि तुम्हारी पहचान क्या है और तुम अपनी पहचान को कैसे हासिल कर सकते हो, है ना। और हव्वा जा कर के शैतान से बातें करती है और सर्प से जब बातें करती है तो सर्प उसको बताता है, यदि तुम इस फल को खाओगे तो परमेश्वर आप जानता है कि तुम उसके तुल्य हो जाओगे, है ना। इम्पॉर्टेंट है कि मैं कहाँ से सुन रहा हूँ। हम लोग कहते हैं कई बार कि रोमियो का 10:17 विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है, लेकिन सुनना मसीह के वचन से होता है। इस चीज़ पे हमें बहुत ध्यान देना होगा, क्योंकि यदि हम मसीह से नहीं सुन रहे, यदि हम मसीह के बोलते हैं कि वचन से नहीं सुन रहे, क्योंकि शैतान भी वचन का इस्तेमाल करता है। मत्ती के 4 अध्याय में शैतान ने भी वचन से बातें की। वचन सुन रहे हैं, लेकिन वचन सुन कहाँ से रहे हैं वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर मैं वचन सुनूंगा, मुझे मालूम है मुझे वचन सुनना है, हाँ मुझे पता है, लेकिन इस दुनिया में बहुत सारे झूठे प्रचारक भी हैं। इस दुनिया में शैतान भी कई बार वचन लेकर के हमसे बातें करता है, जैसे कि उत्पत्ति के 3 अध्याय में और मत्ती के 4 अध्याय में उसने यीशु मसीह से भी बातें की वचन को लेकर के। उसने किसी और जगह से बात नहीं की, वचन को उल्टा सीधा बोलता है कि तोड़ मरोड़ के, कम करके वो क्या करता है, हमसे बातें करता है। और कई बार एक विश्वासी वचन को लेकर के अपनी पहचान भूल सकता है। कई बार वचन को ही लेकर के बोलता है कि वो रूढ़िवादिता पे विश्वास कर सकता है। लेकिन इम्पॉर्टेंट है, वचन सुनना ज़रूरी है, लेकिन मैं वचन किससे सुन रहा हूँ वो भी इम्पॉर्टेंट है। क्या मुझे शैतान तो नहीं बता रहा वचन, क्या मेरा पापी स्वभाव मुझे वचन तो नहीं बता रहा है। मुझे वचन सुनना है, लेकिन परमेश्वर से सुनना है। परमेश्वर मुझसे वचन से बातें करना चाहिए, परमेश्वर मुझे वचन में बढ़ाना चाहिए, क्योंकि रोमियो 10:17 बोलता है कि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है, दूसरे वचनों से नहीं। और बोलता है कि शैतान उसके पास आता है, हव्वा के पास, और वो कहता है कि वो उससे बातें करता है, वो कहता है कि मैं तुझे तेरी पहचान बताता हूँ। और हम जानते हैं जब उसने उसको उसकी पहचान बताई तो वो पहचान सही पहचान नहीं थी, और उसकी वजह से आदम और हव्वा ने अपनी असली पहचान खो दी। कई बार जब एक विश्वासी अपनी पहचान जो यीशु मसीह में है
उसको कई बार जब वो नहीं पहचानता या उसके अंदर नहीं जीता है, तो शैतान हमें एक अलग ही पहचान बताता है, एक अलग ही पहचान में हमको लेकर के जाता है। और वो कहता है कि तुम ये हो, तुम्हें ये बनना पड़ेगा, तुम्हें ये करना पड़ेगा। और बोलता है कि वो अनुग्रह वहाँ से निकाल देता है। वहाँ पर अनुग्रह नहीं है, वहाँ पर क्या है? कर्म है। ये करना है, वो करना है, ऐसा करना है, वैसा करना है, और बहुत सारी रूढ़िवादिता आ जाती है, लीगलिज्म आ जाता है। और बोलता है कि वो शैतान हमको क्या कर देता है? लीगलिस्टिक बना देता है, और हम अपनी पहचान खो देते हैं। हम अनुग्रह में हैं। रोमियो का इफिसियों का 2:8 बोलता है कि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से हमारा उद्धार हुआ है, और ये हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। और बोलता है कि 9वीं पंक्ति बोलती है कि ये कर्मों के द्वारा नहीं हुआ कि कोई घमंड करे। हम यीशु मसीह में हैं, और हम कर्मों के द्वारा उद्धार नहीं पाए, हम अनुग्रह के द्वारा उद्धार पाए। और वो अनुग्रह हमें क्या करता है? दिन प्रतिदिन बढ़ाता है। और अनुग्रह हमारी पहचान है, हमारे कार्य हमारी पहचान नहीं है, हम मेरे अच्छे कर्म मेरी पहचान नहीं है, मेरी योग्यता, मेरी बुद्धिमत्ता मेरी पहचान नहीं है। अनुग्रह मेरी पहचान है। एक विश्वासी अनुग्रह में बना है। रोमियो का 5:2 बोलता है कि हम अनुग्रह में बने हैं। रोमियो का 5:2 यहाँ पर लिखा है, जिसके द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक जिसमें हम बने हैं हमारी पहुंच भी हुई, और परमेश्वर की महिमा की आशा पर घमंड करें। हमारी पहुंच हुई है, हम अनुग्रह में बने हैं, हम अनुग्रह में बने हैं, ये हमारी पहचान है। हमारी पहचान हमारे कार्य नहीं, हम कार्यों में नहीं बने हैं, हम अनुग्रह में बने। जब परमेश्वर ने आदम को बनाया, वो उसका अनुग्रह था, वो उसका प्रेम था। परमेश्वर का प्रेम हमारी पहचान है, और परमेश्वर का प्रेम हमें बोलता है कि हमारी पहचान बताता है। हम रोमियो 1 कुरिन्थियों का 13वां अध्याय में लिखा है कि यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम न रखूं, तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ हूं। इम्पॉर्टेंट है, मेरे पास सब कुछ हो सकता है, लेकिन यदि प्रेम नहीं है, एक विश्वासी की पहचान प्रेम है। यदि मेरे पास प्रेम नहीं है, कुछ नहीं है। बोलता है कि यहाँ तक कि मैं अपना धन संपत्ति सब कुछ कंगालों को खिला दूँ, यहाँ तक कि अपनी देह भी जलाने के लिए दे दूँ, परंतु प्रेम ना रखूँ तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं। इम्पॉर्टेंट है, एक विश्वासी की पहचान परमेश्वर का प्रेम, उसका अनुग्रह है ना, वो उसकी पहचान है। मेरी पहचान मेरी बुद्धिमत्ता, मेरे कार्य नहीं है। इम्पॉर्टेंट है। यूहन्ना का 21 अध्याय में हम देखते हैं 3री पंक्ति में और 15वें अध्याय की 16वें और 17वीं पंक्ति में हम जानते हैं कि परमेश्वर बोलता है कि तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है। एक मिनट, यूहन्ना का 15, 16 और 17 पढ़ लेते हैं हम लोग। इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर लिखा है, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। इन बातों की आज्ञा मैं तुम्हें इसलिए देता हूँ कि तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। वो प्रेम हमारी पहचान है। बोलते हैं कि परमेश्वर बोलता है तुमने मुझे नहीं चुना है, मैंने तुम्हें चुना है। हम परमेश्वर के द्वारा चुने गए हैं, ये हमारी पहचान है। हम यीशु मसीह के द्वारा चुने गए। और बोलते हैं कि यूहन्ना के 21वें अध्याय में हम जानते हैं कि पतरस बोलता है कि पतरस ने यीशु मसीह को 3 बार इनकार किया है। अब वो अपनी गिलानी में जी रहा है, गिलानी में है और शर्म है उसके मन में, उसके अंदर डर है। क्यों मैंने यीशु मसीह को 3 बार इनकार कर दिया, क्यों मैं अपनी बात पे बना नहीं रहा। इस दुनिया में एक भी व्यक्ति परफेक्ट नहीं है, सिद्ध नहीं है। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह यही दिखाना चाहता है कि एक भी व्यक्ति सिद्ध नहीं है। हम कितने भी वायदे कर लें परमेश्वर से, हम कितना भी कुछ करने के लिए हम बोल दें, लेकिन वो हमारी पहचान नहीं है, क्योंकि हम उसमें स्थिर नहीं रह सकते, हमसे वो होगा नहीं। और लेकिन बोलता है कि परमेश्वर का प्रेम हमारी पहचान है। और यहाँ पर बोलते हैं कि पतरस जो था बहुत उदास हो गया, और वो बहुत उदास होकर के और वो अपनी पुरानी पहचान में चला गया। हम जानते हैं कि कौन था, वो मछुआरा था, और उसने अपने जाल उठाए और बाकी के चेले भी उसके पीछे और जा कर के मछलियाँ पकड़ता है। जब हम पहचान भूल जाते हैं
तो जब हम अपनी पहचान भूल जाते हैं तो शैतान हमसे बोलता है कि तू वही कर जो पहले करता था। इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रखती है ये बात। तो यहाँ पर एक चीज़ जो हम देखेंगे कि पतरस ने जब अपनी पहचान को पहचान लिया कि वो यीशु मसीह में कौन है, वो यीशु मसीह में जयवंत से भी बढ़कर है, और यीशु मसीह को इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता हम कितनी बार गिरते हैं। यीशु मसीह हमें उठा हुआ देखना चाहता है। यीशु मसीह बोलता है नीति वचन का 16:24 में कि बोलता है 24:16 में शायद कि एक मिनट में पढ़ लेते हैं नीति वचन कि धर्मी जन चाहे 7 बार गिरे फिर उठ खड़ा होगा। इम्पॉर्टेंट है। हाँ, 24:16 यहाँ पर बोलता है कि क्योंकि धर्मी चाहे 7 बार गिरे तो भी उठ खड़ा होता है, परंतु दुष्ट लोग विपत्ति में गिर के पड़े ही रहते हैं। तो बोलता है धर्मी जन 7 बार गिरे। यह हमारी पहचान है, एक विश्वासी की पहचान है कि वो उठ खड़ा होगा, क्योंकि यीशु मसीह का प्रेम और अनुग्रह उसका एकमात्र सहारा है। परमेश्वर का अनुग्रह हमको खड़ा करता है, परमेश्वर का प्रेम हमें खड़ा करता है। और हम जानते हैं कि वही पतरस जो अपने जीवन में हारा हुआ महसूस कर रहा था, जो अपने जीवन में थका हुआ था, जो अपने जीवन में निराश था, जो अपने जीवन में अपने निर्णय लेने से पिता बोलता है कि हताश हो गया था और अपने आप को गिलानी में समझता था, वही पतरस प्रेरितों के काम 2 अध्याय में हम देखते हैं। वही पतरस प्रभु यीशु मसीह की पहचान में खड़े होकर के निडरता के साथ बिना गिलानी के बोलता है कि तुमने उसे क्रूस पे चढ़ाया, मैंने नहीं। और बोलता है कि वो वहाँ पर खड़े होकर प्रचार करता है और बोलता है कि 3000 लोग उद्धार में आ जाते हैं। जब हम अपनी पहचान को पहचानते हैं तो परमेश्वर हमें क्या करता है, उद्धार देता है, वह हमें सहारा देता है। इम्पॉर्टेंट है हमारे जीवन में। तो हमें इस चीज़ पे बहुत ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि हम यीशु मसीह में हमारी पहचान क्या है, हमारे जीवन का मकसद क्या है। तो बोलता है उसकी सामर्थ क्या है, उसका जीवन का मकसद क्या है, और बोलता है कि उसको दोबारा मछली पकड़ने नहीं जाना पड़ता है। पहले वो हार गया, उसके बाद भी पतरस के जीवन में बहुत सारी तकलीफ़ें आई, लेकिन अभी पतरस क्या करता है, अभी पतरस बोलता है कि नहीं, मैं यीशु मसीह में क्या हूँ, जयवंत से भी बढ़ के हूँ। अभी उसको दोबारा जाने की ज़रूरत नहीं है। तो आज एक विश्वासी की शायद अपनी खुद पहचान भूल सकता है और उसके जीवन में समझौते आ सकते हैं। कई बार वो समझौता कर सकता है कि ठीक है, मैं वापस जाता हूँ, मैं सब कुछ छोड़ देता हूँ। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ हम जो देख सकते हैं कि इम्पॉर्टेंट है मुझे किससे सुनना है, क्योंकि इस दुनिया में 2 व्यक्ति हैं जो मुझे मेरी पहचान बताते हैं। एक है प्रभु यीशु मसीह और दूसरा है शैतान। शैतान मुझसे कहता है, शैतान जो है, शैतान की आवाज़ जो मुझे आएगी वो संसार से आती है। संसार के लोग बोलेंगे अरे तुम ये हो, तुम्हारे अंदर ये टैलेंट है, तुम ये कर सकते हो, तुम वो कर सकते हो। मेरा खुद का पापी स्वभाव मेरे को फुला सकता है, मैं कुछ हूँ, नबूकदनेस्सर राजा। हो सकता है कि मैं खुद का बोलता है कि मेरे दोस्त मेरी पहचान बता सकते हैं मुझे, कह रहे तुम्हारे अंदर ये है, तुम ये कर सकते हो। संसार मुझे बता सकता है। लेकिन एक दूसरा व्यक्ति जो है, यीशु मसीह की आवाज़ जो है, बोलता है कि वो वचन से आती है। विश्वास सुनने से और सुनना मसीह, वो वचन से आती है, पास्टर के द्वारा आएगी। और वो बोलते हैं कि पवित्र आत्मा हमसे बातें करता है और वो हमें हमारी पहचान बताता है। तो एक विश्वासी को अपने जीवन में निर्णय लेना बहुत ज़रूरी है कि मैं कहाँ से सुन रहा हूँ, क्योंकि वो चीज़ें मुझे मेरी पहचान बताएंगी। और इसकी वजह से बोलता है कि मैं अपने जीवन में निर्णय लेने पाता हूँ। यदि मुझे मेरी पहचान नहीं मालूम है, मैं इस जीवन में मेरा जीवन इस धरती पे मेरा जीवन एक अलग ही तरीके का होगा। यदि मैं यीशु मसीह में अपनी पहचान को जानूंगा तो मेरा जीवन एक अलग स्तर का जीवन होगा। और यदि मुझे पता नहीं है मुझे मेरी पहचान यीशु मसीह में, तो मेरा जीवन बहुत ही निचले स्तर का होगा। इसीलिए पौलुस बोलता है कि संसार के सदृश न बनो, तुम संसार के नहीं हो, तुम्हारा पिता एक राजा है और तुम एक राजकुमार हो, तुम स्वर्ग के स्थानों में बिठाए गए, तुम जयवंत से भी बढ़कर हो, तुम स्वर्गीय आशीषों से के वारिस हो, और इस धरती पे पवित्र आत्मा तुम्हारा अगुवाई करने वाला है। तो बोलता है कि हमें परमेश्वर की आवाज़ को सुनना बहुत ही ज़रूरी है। हमें अपनी पहचान वहाँ से कलेक्ट करनी है, यहाँ से नहीं।
संसार से नहीं, मेरे पापी स्वभाव से नहीं, मेरे खुद के विचारों से नहीं, मुझे मेरी पहचान परमेश्वर से चाहिए। परमेश्वर मुझे बताना चाहिए, एक वचन मुझे बताना चाहिए कि मेरी पहचान क्या है। तो मैं इस वचन के द्वारा आप सभी लोगों को उत्साहित करना चाहता हूँ। थैंक यू पास्टर किशोर, और परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं इस खूबसूरत समय के लिए, इस दिन के लिए। हम धन्यवाद देते हैं तेरी महान कृपा के लिए। प्रभु यीशु मसीह, तू हमारे साथ हो, हमारी मदद कर इस समय में इस वचन को समझने के लिए और इसके अनुसार चलने के लिए। हमारी पहचान मसीह यीशु में है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। Okay, good evening, church, and welcome to our midweek service. नमस्ते चर्च, आप सबका स्वागत है इस सभा में। Okay, we had an amazing portions, और बहुत ही अच्छा अभी तक परमेश्वर के वचन से हमने सुना है। and thank you for Pastor Manish and Pastor Manoj. पास्टर मनीष और पास्टर मनोज का धन्यवाद देते हैं, Okay, thank you for your availability. और धन्यवाद देते हैं आप लोग मौजूद हो परमेश्वर के सेवा के लिए। Okay, so I'll just have a very short और message. बहुत ही छोटा संदेश मैं आपके लिए बोलना चाहता हूँ। Okay, thank you for all of you for praying for me. और धन्यवाद आप सबने मेरे लिए प्रार्थना की है, Okay, continue to pray. और इसी तरह प्रार्थना करते रहिए आगे भी, Okay, so that we will be well completely. ताकि जो है मैं जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाऊँ। Okay, so 2 Corinthians chapter 4 verse 7. और दूसरा कोरिन्थियों का 4:7, Okay, let's read that verse. आइए वचन को पढ़ते। Okay, but we have this treasure in the earthen vessels, that the excellence of the power may be of God and not of us. परंतु हमारे पास वह धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है कि यह असीम सामर्थ हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर ही की ओर से ठहरे। Okay, let's pray. Father, we just thank you. We praise you, Lord, and we worship you. And thank you for the amazing portions. And Lord, bless this short devotion. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, as we heard from Pastor Manoj, जैसे कि हमने पास्टर मनोज से सुना अभी, okay, what God thinks about us is so important. और क्या परमेश्वर हमारे बारे में सोचते हैं, ये बहुत ही Okay, महत्वपूर्ण है। oftentimes, like we are so much occupied with what others think. कई बार जो है हम इसमें ज्यादा व्याकुल हो जाते हैं कि दूसरे लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, But our God has a special call for each one of our lives. कि किस तरह जो है परमेश्वर का सभी लोग के लिए बुलाहट है। No matter where we are in our spiritual life. इससे मायने नहीं रखते कि मैं आत्मिक तौर से कहाँ पर हूँ। Okay, I just shared a devotion this morning. और इस सुबह भी मैंने जो है डिवोशन में बताया, Like we all have a race. और हम सब जो है प्रतियोगिता में है, Okay, we are not in a competition. और जो है हम ऐसा कंपटीशन में नहीं, Okay, but God has put a track before us. लेकिन परमेश्वर ने हमारे सामने जो है वो दौड़ने के लिए रखा Okay, है, and we run with endurance. और जो है हम दौड़ते हैं जीतने के लिए। And what's amazing in our run? और अद्भुत बात ये है कि इस दौड़ में Okay, Jesus is there with us in the beginning. और यीशु जो है पहले से मौजूद है, He is in the middle. और वो मध्य में भी है, And he also completes our race till the end. और वो जो है रेस दौड़ करने के लिए जो है इस दौड़ को पूरा करने के लिए वो And मदद भी that's करते the हैं। story of all the characters in the Bible. और यही कहानी है पूरा बाइबल में सभी लोगों Okay, का। Hebrews chapter 11 talks about 18 people where I believe the author is mentioning. और इब्रानी के 11वां अध्याय में 18 किरदार लोगों के बारे में बताते It हैं, says we have a cloud of witness. और वो बोलते हैं कि हमारे बीच में जो है गवाहियों का ऐसा बादल ठहरा Okay, है, they were just men like you and me. और वो भी लोग मेरे और आपकी तरह ही है, Okay, but they made it. लेकिन उन्होंने किया। There's a proverb in the 19th century. और जो है एक नीति वचन है वो 19वीं सदी का, Okay, this is how it went. और इस तरह वो गया है। The bird with the broken wings और जो चिड़िया जो है उसका जो okay, पंखी जो है टूटी हुई है, never will soar again as height again. और वापस जो है ऊपर वो दौड़ेगी नहीं। Okay, in other words, once you failed, और जब वो दूसरी तरीके से बोलना चाहता हूँ, जब एक बार आप चूक जाते हो you will never ever attain heights you did before. और आप जो है कभी भी जो है उस ऊंचाई की तरफ देखते भी नहीं हो फिर। Okay, this proverb was a very sad and disappointed proverb. और ये नीति वचन जो है बहुत ही दुख भरा है।
Okay, and it's not from the Bible. और ये बाइबल से नहीं है। The only problem with this saying is that it isn't true. और एक ही बात बोलना चाहता हूँ कि इसमें से एक को कुछ भी सही नहीं है। Okay, it's never been true when we look at the Bible. और ये बाइबल को जब देखते हैं तो ये सच्चाई नहीं है बताते। Okay, when we search the scriptures, और जब हम वचनों में ढूंढते हैं this proverb will fall apart. और ये जो नीति वचन उसमें से आती है, Okay, will fall apart. और ये It has no value. नीति वचन अलग हो जाते हैं, इसका कोई मूल नहीं है। Okay, think about it today. और इसके बारे में सोचिए। Abraham was, if you look at the people in the Bible, और बाइबल में जब हम लोगों को देखते हैं अब्राहम के बारे में, like Father Abraham. और जैसे कि वो जो पिता कहलाते हैं, Bible talks about his life. बाइबल उसके जीवन के बारे में No, बताती he है। was a liar in a sense. और देखा जाए तो वो झूठा है। No, he had some blatant lies once or more than many times. और वो देखा जाए तो वो जानबूझकर भी झूठ बोला है। But in the midst of it, God calls him the friend of God. और उसके बीचों बीच में भी परमेश्वर ने उसे दोस्त करके So बुलाया। many years later, we still talk about Abraham. और इतना साल के बाद भी हम अब्राहम के बारे में बोलते हैं। Jacob, the cheater. और जेकब जो वाकई धोखा देने वाला व्यक्ति Okay, है, deceitful. और वो वाकई धोखा देते हैं ज्यादा। But God in his love changes his name. लेकिन परमेश्वर वो प्रेम में पढ़कर जो है उसका नाम बदल देते He हैं। takes him to another height. और परमेश्वर उसको और एक ऊंचाई में लेके जाता है। Like he takes him such a high that his name would not fit it to him. और वो इतना ऊंचाई पे लेके जाते हैं कि उसका नाम वहाँ पर जो है मायने नहीं होती है। Okay, so God changes his name and calls him Israel. और परमेश्वर उसका नाम बदल कर जो है इस्राएल रख देते हैं। Okay, and we see the life of Rahab. और हम रेहाब का जीवन को देखते हैं। Okay, she had been well known as a prostitute in Jericho. और जो है उसको जो है जेरिको में रेहाब को जो है वो कुछ गलत काम की वजह से जो है उसे जाना जाता था। Okay, yet God selected her फिर भी परमेश्वर ने उसे चुन लिया to save two great men. और दो महान लोगों को बचाने के लिए। And not only that, she becomes she is included in the lineage of Jesus Christ. और न सिर्फ इतना ही कि वो जो यीशु के वंश वाली से आने वाली होगी। And we can go on and on. और हम आगे भी बढ़ सकते हैं इसी तरह। Like missionary dropouts, John Mark and Jonah. और जैसे कि जो मिशनरी जोना और जॉन मार्क जो पीछे हट गए थे। No, and Jonah had led a spiritual awakening to a dead nation. और जो जोना जो ऐसा कार्य किया वहाँ पर कार्य किया, वहाँ पर आत्मिक कोई भी काम नहीं था। Okay, it's impossible for somebody to save people in Nineveh. So wicked they were. और निनेवा में लोगों को जो है परमेश्वर में लाना नामुमकिन था, फिर भी हुआ। But God used Jonah to reach Nineveh. लेकिन परमेश्वर ने जोना का इस्तेमाल किया कि निनेवा के लोगों तक A reluctant preacher who didn't want to be a preacher. वो प्रचार भी नहीं करना चाहता था, ऐसा प्रचारक को परमेश्वर ने इस्तेमाल And किया। that's amazing about when we look at the Bible. और ये अद्भुत है जैसा हम बाइबल को देखते हैं। John Mark, Paul said, I cannot work with him at one time. और जॉन मार्क भी बोला कि एक बार बोला कि Paul has told, I cannot work with John Mark. और पौलुस ने बोला मैं जॉन मार्क के साथ काम नहीं कर सकता फिर से। But the same Paul says, no, bring Mark in 2 Timothy chapter 4 verse 11. और लेकिन वही पौलुस जो है दूसरा तिमोथी का 4:11 में बोलते हैं और मार्क को लेकर आओ मेरे So पास। no matter what is your past has been, तो कोई परवाह नहीं कि भूतकाल में क्या हुआ है आपके okay, साथ, the future is brighter than you and me can imagine. लेकिन भविष्य जो है बहुत सुनहरा है, वो मेरे आपके कल्पना Because से। God is in the business of using broken और vessels. लेकिन परमेश्वर इस कारोबार में कि वो टूटा हुआ बर्तनों को इस्तेमाल करते हैं। Because that's how He prefers His plan. और इस तरह जो वो योजना को आगे बढ़ाते हैं। Remember Apostle Paul, a broken man. तो सोचिए पौलुस जो है टूटा हुआ व्यक्ति है। In 2 Corinthians chapter 4 verse 7 we just read. और दूसरा कोरिन्थियों का 4:7 में अभी हमने पढ़ा था। Like it just comes from a broken man. और वो एक टूटा हुए व्यक्ति से ये वचन आया। And he says we have this treasure in the earthen vessel. वो बोलते हैं कि हमारे इस बर्तन में जो है ये असीम खजाना है। Okay, so the surpassing greatness of power will be of God and not of myself.
कि असीम सामर्थ्य हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर की ओर से ठहरे। Okay, what is an earthen vessel? क्या है ये टूटा हुआ It's बर्तन? nothing more than a clay pot, और ये ऐसा ये सिर्फ जो है मिट्टी का बर्तन है। a common earthenware jar. और ये देखा है तो एक मिट्टी का बर्तन है इस दुनिया का। Okay, J.B. Phillips comments on this verse. जेबी फिलिप्स इस वचन के ऊपर बोलते हैं, He refers to our bodies in the same way, like a vessel, like an earthen vessel. वो इस तरह इसको तुलना करते हैं जैसे कि हमारे शरीर को तुलना करते हैं। And he says all that we have is this earthen vessel, और हमारे पास सिर्फ इतने ही कि मिट्टी का पात्र है हमारे, like a pot that is perishable. और ये बर्तन जो नाश होएगा, And then we give it that to God. और वो जब हम ये शरीर को दे देते हैं परमेश्वर को। Okay, there's a place called in China. और एक In China, there's a place. और चाइना में एक जगह पर ऐसा होता है, Okay, they make these earthen pots. वो जो है इस मिट्टी का पात्र को बनाते हैं। Okay, when they make this earthen pot, जब वो मिट्टी के बर्तन को बनाते हैं after they make it, और जब बनाने के बाद okay, they would like impose a lot of fire into that pot. और ज्यादा उसके अंदर अंगार को उसमें डाल के जलाते हैं। Okay, and they put fire so much that the pot gives little cracks. और वो इतना अंगार में उसको जलाते हैं ताकि जो है उसमें से वो छेद हो जाए, वो Okay, and टूटने it लगते gives हैं। you little cracks. और धीरे धीरे जो है थोड़े थोड़े क्रैक होते हैं वो Okay, पात्र में। and this is very interesting. और ये बहुत ही अचंभित होने वाली बात है। And then the potter would take a glue with a shining gold or silver. और उसके बाद वो जो है वो कुम्हार जो है उस बर्तन को तो जो टूटा हुआ बर्तन को लेते हैं, उस सोने का जो है पत्री लगाते हैं उसके ऊपर। Okay, and he puts a drawing or he just puts between those cracks. और जहाँ पर भी छेद गिरा है वहाँ पर ही वो जो है वो So सोने he का वो puts the रखते हैं। silver lining or gold lining. और यहाँ तो वो चांदी का जो है लाइनिंग डालते हैं या तो सोने का। And then they would sell these pots with a very high cost. और उसके बाद जो है बाजार में इस बर्तन को बेचते हैं बहुत दाम में, ज्यादा दाम में। So when a person buys it, जब कोई व्यक्ति उसको खरीदते he हैं hangs in this house, और वो जो है वो अपने घर में लटकाते हैं and inside it he puts that beautiful light. और उसके अंदर जो है वो लाइट को डालते हैं। And when you look after the light is on, और जब वो लाइट जब चालू हो जाते है तो देखा जाए तो okay, the light would come out from those cracks, और वो जो जिस टूटा हुआ छेद है उधर से लाइट आती है, and रोशनी, it looks so beautiful. और वो बहुत ही खूबसूरत लगता है। And the reason I'm saying this is very important. और ये इस कारण से बोल रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। Okay, you and me may be very rugged. हाँ, हो सकता है हम सब जो है बहुत ही टूटे हुए लोग We are not हैं। attractive like this pot. और हो सकते है हम इस मिट्टी के बर्तन की तरह जो है ज्यादा Our अट्रैक्टिव, lives could be broken, हमारा जीवन जो है टूटा हुआ रहेगा, but even in that crack, लेकिन उस टूटे हुए में भी if others can see the glory of God, दूसरे लोग जो है परमेश्वर की महिमा को देख like सकते that light that comes out of the crack, हैं कि उसमें से जो रोशनी आती है टूटा हुआ, and so is your life and my life. तो उस तरह मेरा और आपका जीवन Like है God uses that broken vessels, कि परमेश्वर टूटा हुआ बर्तन को इस्तेमाल and करते He हैं brings His glory out of it, और फिर उसमें से जो है परमेश्वर महिमा को लेकर and आता that's है। beautiful. खूबसूरत है ये बात। Just a thought for this evening. ये ख्याल ये सोचने के लिए इस दिन Okay, it's not about what the world defines you and me. और ऐसा नहीं कि दुनिया क्या इसमें सोचती है आपके और मेरे बारे में. आपके और मेरे बारे में, It's what God thinks about me is important. ये परमेश्वर क्या सोचते हैं मेरे और आपके बारे में, Because ये God महत्वपूर्ण है। doesn't give up on you and me. क्योंकि परमेश्वर मेरे और आपके ऊपर उम्मीद नहीं छोड़ते, Okay, because He loves us and He's with us in the race. क्योंकि वो बहुत ही प्रेम करते हैं और इस दौड़ में हमारे साथ है In वो। the world's eyes, और दुनिया की नजर में our wings are broken. हमारे जो है पंख जो है टूटे हुए, We cannot soar high. हो सकता है हम बहुत ऊंचाई में उड़ नहीं सकते, But God is a God of another chance. लेकिन परमेश्वर जो ऐसा परमेश्वर है दूसरा मौका देने वाला परमेश्वर, No, He brings out light in our broken vessels. और वो जो है रोशनी लाते हैं उस टूटे हुए पात्र में। And that's beautiful. खूबसूरत है And that's amazing. और ये अद्भुत है, And that's where we keep going. There's a treasure in our earthen vessel. और इसीलिए हम लोग आगे बढ़ते रहते हैं क्योंकि इसमें Okay, don't look at the outward, बाहरी तौर से अपने आप को but मत look देखिए, at the treasure inside of each one लेकिन of जो us. खजाना हम सबके अंदर है उसके And बारे that में, can light
light out और उसमें से जो है रोशनी ला सकते so हैं, that people could see our lives. ताकि हमारे जीवन को लोग देख सकें। Not me, मेरे बारे में नहीं, but He looks Christ in us. लेकिन उसमें से मसीह दिखते हैं। And that's beautiful. खूबसूरत है। Amen. आमीन। Amen. Let's pray. आइए प्रार्थना करें। Okay, if you're watching this service today अगर आप ये सभा को देख रहे हो, and never believed in Jesus, कभी भी यीशु मसीह के ऊपर you विश्वास can नहीं put किया, your faith in Jesus आप today जो है अपना विश्वास यीशु मसीह के ऊपर डाल सकते हो, by just believing in Him सिर्फ विश्वास करने that से He died for you कि वो आपके लिए मर गए and rose again, और फिर से पुनरुत्थान हो गए, and you can accept Him as a personal और Savior आप जो है उसको अपने उद्धारकर्ता के रूप में इस ग्रहण कर सकते हो। by simply saying, Jesus, सिर्फ इतना ही बोलना है, प्रिय यीशु, I am a sinner. मैं पापी हूँ, I need salvation. मुझे उद्धार की जरूरत है, Come into my life. मेरे जीवन में आइए। Thank you. धन्यवाद देता हूँ Lord, यीशु, thank you for our church. धन्यवाद हमारे चर्च के लिए, Thank you for all the people who are listening. धन्यवाद सभी लोग जो सुन रहे हैं, Thank you for each one's lives. धन्यवाद सभी लोग का जीवन के लिए। Lord, we are that vessel, हम वो पात्र है परमेश्वर, Lord, but we have a treasure inside of लेकिन us. हमारे अंदर वो असीम खजाना है, And that's beautiful. खूबसूरत है, That's all that makes the difference. और इससे ही जो है बहुत फर्क आते हैं, मायने And रखते thank हैं। you, Jesus. धन्यवाद यीशु, We worship you. आपकी स्तुति आराधना In करते हैं, Jesus' name we यीशु pray. मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, Amen. आमीन। As the deer panted for the water, so my soul longeth after thee. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. You alone are my strength, my shield. To you alone may my spirit yield. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. You're my friend, and you are my brother, even though you are a king. I love you more than any other, so much more than anything. You alone are my strength, my shield. To you alone may my spirit yield. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. I want you more than gold or silver, only